लगा ओके। तो अब मैं, आर यू फाइन विद इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज? शुड आई स्पीक कॉमन? ओके, वेरी नाइस. So now I will give my brief introductions. My name is Ombir Singh. I have worked with ITC Hotels 35 years. Started my career as a steward and I have retired as a F&B manager. Right? I have been working entire India with ITC company. Also, I work with Taj Groups. Also, I worked few years with Overay Group also. And other various hotels like Clark Group of Hotels, Lorry Group of Hotels, many other hotels in industry groups I have attached with them. So my journey start from Jaipur. I have done, that time when we were studying, that time there were no 3 years degree colleges in all over India. We have only 3 degree colleges, which were Pusa Institute of Delhi, which is hotel management, as well as at Agriculture University. Another was in Mumbai, there was IHM Mumbai, and there was a IHM in Chennai also. In all over Uttar Pradesh, we do not have any universities, any hotel management colleges. Even in Rajasthan, even in MP. So in year of 1982, when I was studying in BSc Agriculture from Bichpuri College, Agra, so in beginnings, शुरुआत से I was very interested to read the newspapers. I belongs to very simple गांव, किसान का बेटा हूँ और खेती पे विश्वास करता हूँ और जीवन को मैंने बहुत बड़े लॉन्ग अरसे में धीरे धीरे बढ़ाया है. तो जब मैं बिचपुरी कॉलेज में, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन बिचपुरी कॉलेज, इन दैट पीरियड आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी एंड आई यूज्ड टू रीड द पेपर, न्यूज़पेपर्स. सो 1982 देयर वाज ए बिगेस्ट बाढ़ इन जयपुर, राजस्थान. So I was just I'm going through the brief. When I did this diploma, I have done 2 years IHM. That time only 2 years hotel management diploma come catering. So I have passed out that diploma in 1984. After that I work in Mumbai. It's the first hotel I work in Mumbai, Taj, which there was a blast, if you know about it. I worked there, it's about not less than, I work only 37 days. Because we were having a group of students, the same college, we were around 11 people, and we have selected there to go for vocational training. So vocational training, when I was doing a vocational training in Mumbai, they have, the company Taj Group has committed us to give accommodation and the stipend, scholarship, as well as food. But they have not fulfilled the things. देन जब उन्होंने भरा, वो नहीं किया हमारा फुलफिल, तो हम लोगों ने सबने मिलकर स्टूडेंट ने प्लान किया. देयर विल बी 5 गर्ल्स, द रेस्ट वर बॉयज. वी प्लान टुगेदर एंड रात को ही, उसी दिन हम रात को चल दिए वहाँ से, विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशंस. देन वी केम टू आवर कॉलेज. देन वी स्पोकन टू आवर प्रिंसिपल. ही सेड कोई बात नहीं है, आपको ताज ग्रुप आगरा जयपुर में ताज में करा देंगे, रामबाग पैलेस में. Then finally we completed our training in Taj Group as well as with ITC. When the final year, when my examination was going on, there was a outside faculty who comes for interviews for practicals. So ITC has a very big group which has got all over India. Every big cities we have a hotel. So in Jaipur, there was a Mansingh Hotel which comes under ITC. The F&B manager of Mansingh Hotel came there in the college to take our interview, to take our vivas. So that time I was very young, not even having a beard.
but when they were practical going on, I was having little hair over here. Then the examiner, he said, it will not go. You have to shave every day to maintain the grooming standard. So now we come to the new point. What is grooming? Grooming standard में you have to maintain. Okay. Okay. तो मतलब कि आपको बिल्कुल फ्रेश, नीट एंड क्लीन कपड़े साफ पहनने, आपके हेयर्स शुड बी कट प्रॉपरली, गर्ल्स के अपने जो भी यूज करते हैं टाइट होना चाहिए, लुक स्मार्ट, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन, क्रिस्पी, है ना, एंड शूज एवरीथिंग, इट कम्स एवरीथिंग. ग्रूमिंग के अंदर सब कुछ आता है. व्हेन यू विल बी वेल ग्रूम यू लुक स्मार्ट, इजंट इट? होता है कि नहीं होता? जब हम लोग स्मार्ट बनना चाहेंगे तो वेल ग्रूम होंगे तभी स्मार्ट लगेंगे. तो मेरा मतलब कहने का ये है कि चलो, जस्ट टू कट ऑफ दिस, मैंने अपना कैरियर ऐसे स्टार्ट किया. आईटीसी में मैंने ज्वाइन किया 1983 में एज ए ट्रेनी कैप्टन. देन आई बिकम कैप्टन. Then slowly I become METD, I become manager, restaurant manager, then assistant manager, F&B manager, then F&B manager. So this was my cycle. This was my style of working there. And I was very much happy. I earned a lot money with the company. I make my, standard, everything. आपकी दुआ से, आप सब लोगों की उससे अच्छा खासा इसमें स्कोप है. होटल इंडस्ट्री आप जब तक जिस तक जाएगी, कहते ना, जहाँ से कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS PCS बनता है, वो अलग है. लेकिन इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त जूम है. यकीन मानिए, अगर आप रोज रेगुलर ड्यूटी स्कूल में आते हो, आप अटेंडेंस देते हो, और यहाँ जो नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 जो कॉलेज है जहाँ आप बैठे हुए हैं, Fox India is number 1 college in hotel management college and management college in north of India. This, we should clap for this. Because we have proud of this, that in this area, such a small city, we have a nice hotel management course. तो इसके लिए क्या है कि टाइम टू टाइम मैंने, अब ब्रीफिंग में आता हूँ, मैंने 2019 में वसीम सर के साथ मिलकर के, अविनाश सर ने मुझे बुलाया था उस समय, आप आइए और हमारी हेल्प करिए. तो मैंने कहा सर मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, पर फिर भी मैं समय निकाल करके कोशिश करता हूँ कि मेरा एक एम है न्यू जनरेशन को अधिक से अधिक नॉलेज देना, टू शेयर माई नॉलेज टू द न्यू जनरेशन, विच जो अधिक से अधिक शेयर कर सकूँ मैं. तो मैंने ये किया. 2019 में हमारे पास 25-30 बच्चे थे. ऐसे बढ़ा है ये कि आप ये समझिए, 19 में, फिर 20 में, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितने साल हो गए? 7-8 साल के अंदर हमने इस इंस्टीट्यूट को इस लेवल में पहुंचा दिया. हमारे वसीम सर ने, उन्होंने, मैं तो ज़्यादा दिन नहीं रहा, शुरू में था 1-2 साल, पर ये कॉलेज जिसका नाम हो रहा है, नाम चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा. यहाँ के स्टाफ की, मैनेजमेंट की मेहनत, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ की ग्रूमिंग्स, यहाँ का जो फैकल्टीज़ हैं उनका पढ़ाने का तरीका, यहाँ की फीस, यहाँ का अनुशासन, ये सारी चीज़ बहुत कुछ डिपेंड करती है. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ एक से एक अच्छी हस्तियाँ बहुत अच्छे होटलों में, 5 स्टार होटलों में काम कर रहे हैं. फर्स्ट बैच के सारे बच्चे जितने मेरे साथ मैंने पढ़ाया हुआ था, सारे बच्चे आज बहुत अच्छी पोजीशंस में काम कर रहे हैं. कुछ लड़कियाँ एयरलाइन में एयर होस्टेस बन गई हैं, जैसे सानिया, आपने नाम सुना होगा, फोटो तो की होगी. एक लड़की है सानिया, ठीक है, और एक लड़की है गुंजन, और एक लड़की है शिवानी कुशवा. दीज गर्ल्स, आई विल कम टू द बॉयज ऑल्सो, दीज गर्ल्स वर सो इंटेलिजेंट, इन्होंने इतने मेहनत से, लगन से काम किया
तो जब ये आए थे आप लोगों की तरह थे, इन्होंने क्लास रेगुलर अटेंड की। क्लास अटेंड करने के बाद इन्होंने मेहनत की, इंग्लिश सीखी। इंग्लिश के टाइम टू टाइम कंपटीशन्स कराया जाता है, टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। ये सब्जेक्ट वसीम सर हैं, अविनाश सर हैं, और भी पहले एक साइंस सर थे। तो इनका जो पढ़ाने का तरीका है सबसे बढ़िया लगता है मुझे। एक पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है, एक आया आदमी बोर्ड पर लिख गया, चला गया, निकल गया, आपकी समझ भी नहीं आया। तो ऐसा पढ़ाने से क्या फ़ायदा है जो समझ ही नहीं आया, है ना। यो पढ़ाने का द वे ऑफ टीचिंग इज टोटली अलग अलग होता है हर आदमी का। इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट विद अदर टू पर्सन टू पर्सन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप सब लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म्स, इफ आई टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म, आपका जो फ्यूचर है ब्राइट है, बशर्ते आपको रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है। रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, अच्छी तरह अपने टीचर्स से, फैकल्टी से, अपने साथियों से मिलके रहेंगे, साथ ही साथ अटेंडेंस का ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग पर ख्याल रखेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नॉर्थ ऑफ इंडिया में किसी भी होटल मैनेजमेंट स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं कराया जाता है। ये आई एम श्योर अबाउट इट। रिटायरमेंट के बाद मैंने कई कॉलेजों में भी काम किया हुआ है। जैसे आपने सुना हुआ एक यूआई ग्लोबल है, जो आगरा में भी उसकी ब्रांच है, अभी तो बंद हो गया है। जैसे आपने HIIT सुना हुआ, बमरौली कटारा पे है। जैसे आपने बेदा सुना होगा, है ना। मेरा मतलब बहुत कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, आई एम ओनली टॉक अबाउट आगरा, आई एम नॉट टॉक अबाउट आउट ऑफ आगरा। मेरा इतना अच्छा अनुभव है कि मैं कॉलेज के सारे लोगों से मेरे PR हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अटैचमेंट बार बार शायद आपको पता होगा, मैं उस दिन आया था, फंक्शन हुआ था आप लोगों का। तो वसीम सर ने मुझे और अविनाश सर ने बहुत कई बार बोलने के बाद बार दे ऑल ओवर वेटिंग फॉर मी। तो देर इज समथिंग फॉर मी और देर इज समथिंग फॉर हमारा रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ तो होगा जो इतना अटैचमेंट है। वाई इट इज सो, इतना क्यों है भाई, जो लगाव होता है। आज मैं इस बच्चे से परिचय करता हूँ और अगर मुझे इसका स्वभाव इनका पसंद आता है, इनका स्वभाव मुझे, तो डेफिनेटली इनका अटैचमेंट हो जाएगा। ये बेटी है, ये आप सब स्टूडेंट हैं। मेरा मतलब कहने का ये है, कभी भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, डू नॉट हेजिटेट टू विद एनी वर्ड। किसी से हिचकिचाओ मत बोलने में। कोई बात अपनी कहनी है, किसी भी रूप में कहनी है, डायरेक्ट जाके सर को बताइए। कोई आपस में प्रॉब्लम है, समाधान हर चीज़ का है। देयर इज ए वे फॉर एवरीथिंग। समझ आ रहा है? क्लियर? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर देखो क्वालिफिकेशन